Ma'am, recording is on now. Yeah. Okay. Kriti ma'am. Yes, Maheshwari. Good morning. Yeah, ma'am. Shama ma'am has spoken to principal ma'am. Ma'am has given us a green signal to start. So with your permission, we are going to start. Sure. You will start. Yeah. Thank you. Thank you. Pooja ma'am, can you record from your end? Okay, namaskar. Good morning, everyone. On behalf of BMVR Girls College and Sitaram Devra Institute of Management Studies, managed by Marwari Sammelan and affiliated to SNDT University Mumbai, myself, Maheshwari Murdeshwar, welcome everyone in today's orientation program for FYJC Arts and Commerce students. We welcome honorable dignitaries of Marwari Sammelan in today's program. We are privileged to have amongst us Honorable Principal of the College, Dr. Santosh Paul Ma'am, Associate Professor of Psychology and our Cultural Incharge, respected Shruti Ranade Ma'am, Vice Principal, Mrs. Shama Tamankar Madam, Supervisor, Mrs. Kusuma Dabari Madam, respected teachers, and my dear students. After a long wait, it's great to see the freshers, our newcomers, our first year students of commerce and arts. A grand welcome to all of you. आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। ये हमारे कॉलेज की परंपरा रही है कि हर शुभ कार्य का आरंभ हम ईश वंदना से करते हैं। तो आइए हम ईश वंदना करते हुए बुद्धि और ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ तू ही वाहे गुरु तू ही शमसी हर नाम में तू समा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। A bright and pleasant morning to everyone once again. Dear students, आज
नया दिन है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस है। सरस्वती का पावन मंदिर, ये संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे है हर बालक उसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। Dear students, I heartily congratulate all of you for achieving success in your school exams and moving ahead with new goals and aspirations. You are part of our college now. We wish that you imbibe the best knowledge and experience from here. Your commitment and sincerity will always help you in making you a very good individual and a responsible human being. We believe that the development of a quality educational system largely lies on the committed members of the faculty, quality, infrastructure, supportive administration, and a large pool of learning resources, and of course, our brilliant students. We would like to know, we would like you to know about your college, understand its wide spectrum for all-round development and empowerment of the students. So, I request Mrs. Ajita Gopinath to introduce this great pillar of knowledge and wisdom. Over to you, Ajita ma'am. Thank you, Maheshwari. A very warm welcome once again to our dear students and parents. I am Mrs. Ajita Gopinath, lecturer of commerce, teaching the subjects of secretarial practice and bookkeeping and accountancy. I take great pleasure and privilege in introducing the college and the courses offered by it to you. Bhagirathi Bai Manmal Ruya Girls College, that is your BM Ruya Girls College, was established in 1958 by the committed members of the Marwadi Sammelan to ensure that girls get an equal opportunity to study and develop as strong, independent, and empowered women of our society. The Marwadi Sammelan has always been in the forefront of propagating and promulgating the education of the girl child. Impressed by the proficiency and dedication of the Marwadi Sammelan, Srimati Nathibai Damodar Thakarse Women's University, that is the SNDT University, Mumbai, granted affiliation to our college in 1960. Along with the degree courses, the college offers higher secondary classes for arts and commerce, that is the junior college of standard 11th and 12th. The 11th and 12th standards is attached to the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education. The same board which conducts your SSC exams conducts the 12th board exams too. At the degree level, the college offers BA in Hindi medium, BCom and BMS in English medium. MCom and MA are also offered as postgraduate courses. BCA and BMM courses were started in the year 2012, offered under Sitaram Devra Institute of Management Studies. We are proud to be an institution that provides holistic, student-centric environment. The college believes in the blend of traditional and modern values and an amalgamation of academics and co-curricular activities like sports, NSS, cultural activities, etc. Along with academic courses, bridge courses,
personality development programs, certificate courses, and skill development programs which enhance the employment opportunities of our students are conducted. As a result of our constant efforts towards quality enhancement, BM Ruya Girls College obtained a B+ grade in the NAC accreditation third cycle. The strength of our institute lies in its innovative pedagogy, result of which our students routinely gain recognition and rewards in co-curricular activities alongside academics. We at BM Ruya Girls College relentlessly strive towards creating enterprising and diligent students who are not hesitant of making their own choices and following their own path. So students, our best wishes to you and we welcome you once again to be a part of the BM Ruya Girls College and best wishes as you embark on a new journey of your life. Thank you, students. I now request Associate Professor of Psychology, Cultural in charge of our college and counselor, Ms. Shruti Ranade, to brief you about co-curricular activities. Thank you all so much, parents and students. Over to Shruti ma'am. I'm welcoming everyone. I'll just present my screen. Just wait for a few seconds. Thank you. Juliana Gungora, please switch off your microphone. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? Kindly write in the chat box if you are able to. या आप माइक मत खोलिएगा, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आप लोग कैसे हैं. ओके और बहुत बहुत नमस्कार सभी को ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जैसा कि महेश्वरी मैडम ने कहा अभी, और हमें हमारी अजिता मैडम ने भी कहा, क्षमा मैडम वहाँ पर उपस्थित है, हमारे प्रिंसिपल मैडम, हमारे मैनेजमेंट और सभी मेरी जो सहशिक्षिकाएं हैं, उन सभी को बहुत बहुत मैं उनका स्वागत करते हुए आप लोगों का खास करके हम लोगों को मुझे स्वागत करना है. ये मौका मिला मुझे स्वागत करने का, बहुत अच्छा लग रहा है. हेलो एवरीबॉडी, चैट बॉक्स में बहुत सारे चीजें आ रहे हैं, लिख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड्स की ये कोरोना काल है ना, इसने हम लोगों को सबको थोड़ा सा क्या कहते हैं, निराश कर दिया है. बहुत सारी पेरेंट्स हिम्मत बनाए हुए हैं, कॉलेज हिम्मत बना कर रखा है कॉलेज ने, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खासतौर पर हमारा मैनेजमेंट और हमारे प्रिंसिपल मैडम और आप सभी के जो टीचर्स हैं, तो इनके कारण हम लोग ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग ऑनलाइन मिल भी रहे हैं और मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, तो ये मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रिंसिपल मैडम की और मेरे पूरे जूनियर कॉलेज की जो मेरी सहशिक्षिकाएं हैं, को टीचर्स, उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आपका एक बार जोर से मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय में. एंजॉय कीजिए, जूनियर कॉलेज में भी एंजॉय कीजिए और फिर बाद में 2 साल के बाद या नाइस टू मीट यू टू गर्ल्स, एंड बाद में आप डिग्री में भी आइए. अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हर कॉलेज जो है, ओके, मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी. स्क्रीन प्रेजेंट करते वक्त मैं आप लोगों का ध्यान कुछ चीजों की तरफ देना चाहूंगी. जैसे देखिए कि अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में आएंगे या फिर ऑनलाइन में भी आप लोग वेबिनार वगैरह अटेंड करेंगे. आपको मालूम है ना, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां से प्रत्यक्ष रूप से अटेंड करते हैं. तो मैं हिंदी में बात करूंगी, चलेगा ना? कि ऐसा है कि मैं इंग्लिश में बात करूं या मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में मल्टीलिंगुअल हूं, तो मैं आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, माइक मत खोलिए.
तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है इसके लिए। यस, तो आई विल टॉक इन बोथ द लैंग्वेजेस because India is we are multilingual people। हम लोगों के पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे धर्म जाति, और मैं इप्सी में पढ़ाती हूँ ना डिग्री कॉलेज में, तो यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता को लेकर हम कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, और मुझे सौभाग्य मिला है कि कई वर्षों से मैं इसका मतलब सबके सहयोग से मुझे इसमें हिस्सा लेने को मिलता है। तो क्या कल्चरल एक्टिविटीज है, और हमारे इनक्रेडिबल इंडिया को हम अपने एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो मुंबई की है उसके उसकी ओर से और हमारी कॉलेज की ओर से अलग अलग जगह पर प्रेजेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, परंतु स्ट्रेस ये बहुत जीवन का अभूतपूर्व अंग है। स्ट्रेस नहीं है तो काम भी नहीं होगा, परंतु स्ट्रेस ज्यादा है तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरोना की या कोरोना के कारण जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, परंतु उसको कम करने के भी तरीके हमारे पास हैं। तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि जीवन में जो तनाव आता है उसको दूर करना है, या हमारे व्यक्तित्व को हमको क्या कहना है, जिसको बोलते हैं फ्लरिश करना है, बढ़ाना है, उसका विकास करना है, एंजॉय करना है, मनोरंजन चाहिए हमें जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा चाहिए। तो कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो हर जगह पे होती है। तो हमारा कॉलेज तो बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज, आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी स्क्रीन मेरी, और उसमें हम जाएंगे बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज की हमारी वेबसाइट में आपको दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। ओके, सो लेट्स गो इन। हम लोग देखेंगे बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज की हमारी जो वेबसाइट है। मैं गर्ल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ हमारी जो वेबसाइट है। ये देख लीजिए, आपके सामने हमारी बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज की वेबसाइट है। आपको दिख रही है? अगर आपको दिख रही है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे नंबर 1। चैट बॉक्स में काइंडली राइट नंबर 1 अगर आपके सामने ये प्रस्तुत हो रही है तो। यस, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग ये देख लीजिए, हम लोगों ने 100 साल मारवाड़ी सम्मेलन ऐसी संस्था है जिसने 100 साल स्त्री शिक्षित क्षेत्र में 58 में हम लोगों ने स्थापना की थी हिंदी विभाग के द्वारा। और हमारे यहाँ पे बीए है, बीकॉम है, बीएमएस है, और हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है सीताराम देवरा इंस्टीट्यूट, उसमें भी कोर्सेज हैं बीएमएम बीसीए जैसे। तो ये मैं आप लोगों को हमारे बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज जो एफिलिएटेड टू एसएनडीटी मुंबई है उसकी वेबसाइट आपको दिखाना चाहूंगी। उसमें देख लीजिए बहुत सारी चीजें हैं की कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ पे होता है, आप जानते हो कॉलेज खुलता है, अगस्त महीना आता है, और 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारे भारत का, तो वो हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें, नृत्य है, डांस है, छोटे छोटे ग्रुप सॉन्ग्स हैं, ये सब प्रस्तुत करते हैं। और कुल मिलाकर पूरे साल भर हम लोग काफी सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ओके, अब देख लीजिए इनका हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात, जूनियर और डिग्री कॉलेज साथ में। आप अभी जूनियर कॉलेज में हैं और अभी आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, बहुत सारी चीजें चेंजेस लेकर आ रही हैं, और आप लोगों के और हमारे, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं परंतु हमारे पूरे देश के कल्याण के लिए अभी चर्चा चल रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी रहेगी, क्या रहेगी, उसमें कलाओं को कितनी मान्यता मिलेगी, भाषा को कितनी मिलेगी, किस विषय को क्या वो तवज्जो मिलेगा। तवज्जो उर्दू वर्ड है, मतलब उसका मतलब क्या है कि कोई मिले। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम भी कि आपका सर्वांगीण विकास हो, माने कि होलिस्टिक जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट, उसके लिए हम लोग बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज की ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से हम लोग अलग अलग प्रतियोगिताएं आपके लिए साल भर आयोजित करते हैं। उसमें से मुख्य कुछ मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो शुरू होता है 15 अगस्त के को लेकर के, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारा ही होगा ना, मतलब आप हमारे हो गए। तो अभी हमारे कॉलेज में क्या क्या अरेंज होता है, पहले तो टैलेंट शो अरेंज होता है। आप लोग जो भी आपके इसमें प्रतिभा है, आपने जो सीखा है, जो हुनर है, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टैलेंट शो भी करवाएगा, मतलब अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है, ऑनलाइन किस तरह से हम लोग आयोजित करते हैं। परंतु टैलेंट शो जब कॉलेज में होता है तो कोमल आपको ना पिन करना पड़ेगा, जहाँ पर ये प्रेजेंटेशन है ना मेरा, जहाँ पर नाम है
पिन करना पड़ेगा। बाकी लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? Can you kindly write down number 2 in the chat? Just give me 1 minute, please. बरोबर. क्या आपको अभी दिख रहा है गर्ल्स, जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ? हेलो हेलो गर्ल्स. Yes, ma'am, we can see. Yes, You can see, no? We Okay, can fine. see. तो yes, Yes, ma'am. yes, ये जो आपको हाँ, No, ये जो ma'am. आपको पिक्चर्स देख रहे हो, नो? कोई No, है? ma'am. No, ma'am. No, ma'am, I can't see. It's visible, Shruti. No, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Shruti? ओके, तो चलिए. Yeah. हाँ जी, हाँ जी. तो दिख जिनको रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है गर्ल, अच्छे से दिख जिनको नहीं, ये मुझे दिख रहा है. मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगा के रखती हूँ हमेशा, तो मुझे मेरे फोन पे दिख रहा है. तो मैं आपको सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे मेरा नाम आ रहा है ना श्रुति रानड़े करके, तो वहां पे पिन है, प्रेजेंटिंग ऐसे लिखा हुआ है, तो वहां उसको पिन कीजिए तो आपको दिखेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग जाते हैं सफर पे. हमारी बीएम रिया गर्ल्स कॉलेज की जो वेबसाइट है, आप लोग इसको देख रहे हो अभी, और इसमें आप लोगों को बहुत सारे फोटोग्राफ्स और सब कुछ नजर आएगा. सबसे पहले तो आप लोगो देख लीजिए, मारवाड़ी सम्मेलन संचालित हमारा जो बीएम रिया गर्ल्स कॉलेज है. आप देख रहे हो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज. आप पिन कीजिए मेरे नाम के आगे, जहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको दिखाई देगा. ओके गर्ल्स, तो हम लोग इस तरह से ये देख लीजिए, सारी एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही है. ओके, यस, काइंडली राइट व्हेन यू विल सी इन द चैट बॉक्स नंबर 2, तो मुझे पता चलेगा आपको दिखाई दे रहा है. जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो पीपल में जाके वहां पे जो है ना, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें मेरा नाम है, वहां पे पिन कीजिए, सबको दिखाई देगा. अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं ना, और थोड़ी कोशिश कीजिए. डू नॉट ओपन योर ऑडियो. ओके गर्ल्स, तो हम लोग देख रहे हैं, देख लीजिए. ये अब मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये पूरी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, bmriagirlscollege.com. जब आप डालोगे तो आपको ये पूरी वेबसाइट भी आपको दिखाई देगी. वो आप बाद में जरूर देख लेना, ताकि ये अपना कॉलेज है, मालूम होना चाहिए. पर फिलहाल मैं आप लोगों को कल्चरल एक्टिविटीज में, फोटो गैलरी में लेके जाना चाहूंगी. कल्चरल एक्टिविटीज जो है, हाँ ओके, तो मैं आप लोगों को उस फोटो गैलरी में लेके जाना चाहूंगी. सी कल्चरल एक्टिविटीज में हम लोग जाएंगे, और देख लीजिए मैं आपको जो प्रेजेंट कर रही थी आपके सामने अभी आएगा. तो मैंने आपको कहा 15 अगस्त होता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिशन्स होती हैं, जैसे भजन प्रतियोगिता हो गई. अभी आप देखते हो कि ढाई धूम शोर के गाने बहुत होते हैं, परंतु जो ओरिजिनल जो चीजें हैं हमारे देश की, वो हम लोग बहुत कम प्रस्तुत करते हैं. परंतु ये हमारा महाविद्यालय है कि जिसने सबसे पहले भजन प्रतियोगिता प्रारंभ की थी, तो वो हमारे यहाँ पे होता है. बहुत मजा आता है लोगों को. वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता होती है, फिर टैलेंट शो तो मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ा हमारा जो आकर्षण है वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में हम आप लोगों को भेजते हैं, और हमारे यहाँ भी हम आयोजित करते हैं. तो सुनीता श्रीकांत दालमिया इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन जो है ये हमारे यहाँ पे हम आयोजित करते हैं. 3 दिन का ये प्रोग्राम रहता है, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स इसमें रहती हैं, और आप लोग मतलब अभी तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं. बहुत बाहर के भी कॉलेज के लोग आते हैं. तो इस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स हम आयोजित करते हैं. हमारा सबसे आकर्षण जो है वो है यूथ फेस्टिवल, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं. डांस हो गया, नाटक हो गया, वाद विवाद हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग
वहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके भेजते हैं, उनको तैयार करते हैं, टीचर्स मिलकर तैयार करते हैं, बाहर के डायरेक्टर्स की भी जरूरत पड़े तो बुला के लाते हैं। और एनुअल फंक्शन के बारे में आप कैसे अभी तक किसी ने पूछा नहीं, मतलब पूछने के लिए चैट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। तो एनुअल फंक्शन भी हमारा होता है जिसका नाम है रसफुहार, आपके सामने है, जिसमें हम लोग रसफुहार के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि पिछले साल की जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाते हैं, जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फर्स्ट सेकंड प्राइजेस जिनको मिले हैं, फिर बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एम्प्लॉय, ये सारी चीजें, बेस्ट एनएसएस, बेस्ट एनसीसी, स्पोर्ट्स, अभी आपके सामने हर तरह की चीजें आएंगी। तो ये हमारी फोटो गैलरी जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये देख लीजिए, हमारे यहाँ पे अलग अलग, मैं अभी सिर्फ 1-2-3 मिनट बात करूंगी, इसके बाद मैडम आपके सामने और दूसरी चीजें प्रस्तुत करेंगी। देख लीजिए, हमारे यहाँ योग का भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। 21 जून को हमारा 2-3 दिन का हमारा फेस्टिवल चलता रहता है। और ये देख लीजिए आपके सामने पूरी फोटो गैलरी, ये देख लीजिए निर्झर का मैं एक फोटो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। फिर इसमें ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना है, मेहंदी है, चेस कंपटीशन है, ये हर तरह से देख लीजिए भजन कंपटीशन टाइप फोटोग्राफ हमारे यहाँ पर है। बहुत मजा आता है और अलग अलग इतनी बढ़िया होती है ये सारी कॉम्पिटिशन। ये आपके सामने दिखाई दे रही है हमारी एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई, जो हमारी बेटा आपको मुझे पिन करना पड़ेगा, मेरे नाम के आगे जाके आप वो पिन है ना उसको टैग करिए, ठीक है? तो आपको मैं दिखाई दूंगी, मेरा प्रेजेंटेशन तभी दिखाई देगा, वरना तो नहीं दिखाई देगा। आप छोड़ के मत जाना इसको, या फिर जाके वापस आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, यस, तो ये जो है आपके सामने, मैं आपकी चैट बॉक्स में आपके पढ़ रही हूँ दूसरे मेरे फोन पे। यह है हमारी आदरणीय वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर शशिकला बंजारी मैडम, और आपको हमारे जो मैनेजमेंट की, जो हमारे आदरणीय जो हमारे मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट में हमें सहयोग देते हैं पूरा वो दिख रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं सुशील व्यास जी, फिर हमारे सेक्रेटरी साहब हैं सुरेश देवराज जी, और हमारे ट्रस्टी और हमारे कन्वीनर हैं श्रीकांत डालमिया जी, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको पहचान इसलिए करा रही हूँ, देख लीजिए यशस्विनी प्रोग्राम है। यशस्विनी माने कि क्या होता है, एसएनडीटी में तेजस्विनी, जैसे आप मिस इंडिया, मिस ये मिस वो देखते हो ना, वैसे हर यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग प्रोग्राम होता है। ओके, तो वैसे यशस्विनी हमने अपने कॉलेज में आयोजित किया है, जहाँ 11 से लेकर टीवाई तक के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। जैसे आपने कभी देखे होंगे ना ये मिस लैकमे, ये वो सब, वैसे ही उस धरती पर ही हम लोग इसको आयोजित करते हैं और बहुत मजा आता है। और वहाँ पे जजमेंट भी होती है, और मिस यशस्विनी जो बनती हैं उनको मौका दिया जाता है, उनको क्राउन पहनाया जाता है। तो ये सारी बहुत मजेदार चीजें हम लोग आयोजित करते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, हमारे अलग अलग विभाग है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जरिए देख लीजिए आपको ये सारे आप लोगों के मैडम लोगों ने प्रस्तुत किया था नाटक प्रेमचंद जयंती सप्ताह हम लोग मनाते हैं और उसमें नाटक प्रस्तुत करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के। तो स्टूडेंट्स भी दिख रही हैं आपको पीछे, और ये जो स्टूडेंट्स अभी आपको दिख रही है मेरे क्लास में अभी FY में पढ़ रहे हैं। ओके, और ये सामने पूरे टीचर्स, अरे आपके जूनियर कॉलेज के टीचर्स, डिग्री कॉलेज के, इतने माने मैं आपको बता नहीं सकती, पढ़ाई में तो है ही, सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए नहीं कि मेरी फ्रेंड्स हैं, पर आपको अभी पता चलेगा कि कितना मन लगाकर हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। आपको खुद ही अनुभव आएगा, फिर आप मुझे बोलेंगे श्रुति मैडम यस आपने सही कहा। और आपको सबको दिख रही हूँ मैं, मेरा प्रेजेंटेशन, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे नंबर 3, आगे जाना पड़ेगा ना, वही नंबर नहीं लिख सकती मैं या तो यस लिखिए या तो 3। और तो ये देख लीजिए, तो ये एक नाटक प्रस्तुत किया था डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी उनकी ओर से। और ये देख लीजिए, जब आप पास आउट करके बाहर जाते हैं तो आप पूर्व छात्र कहलाते हैं, मतलब 11th के बाद 12th के बाद या तो BA BCom BMS आप चुनकर कॉलेज में आएंगे और पास आउट होके जाएंगे, तो फिर से हम आपको बुलाते हैं और ये एलुमनाई मीट भी हम लोग आयोजित करते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, बहुत मजा आता है कॉलेज में। अब जब कॉलेज जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा तो हम लोगों को ये चीजें देख लीजिए। एक और शानदार फोटोग्राफ देख लीजिए, कितना सुंदर है, एनुअल फंक्शन रसफुहार का फोटो है, ये आपके सामने आ रहा है बहुत सुंदर फोटो है। तो ये देख लीजिए, लग रहा है ना कि जाके अभी कुछ तो भी प्रैक्टिस करे, डांस, म्यूजिक, प्ले, लग रहा है कि नहीं? जिसको लग रहा है वो लिखेगा चैट बॉक्स में नंबर 4। यस 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 यस, जिसको गाना गाने की इच्छा हो रही है, जिसको डांस करने की, जिसको प्ले करने की, लिखेंगे नंबर 4। वाओ, देख लीजिए कितना कलरफुल है, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग
वाह वाह वाह! और स्टूडेंट्स खास करके देख लीजिए, ये सारी चीजें ये देख लीजिए, कितना सुंदर है। आहा! वाह वाह! चैट बॉक्स में जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये देख लीजिए, ये देखिए देखिए, ये सारी चीजें फिर उसमें अलग अलग हमारा भारत जो है वो क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अतुल्य भारत। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, पंथ, भाषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, डांस, फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, यस यस सब कुछ है। तो आप लोगों को हम लोग ये सब कुछ सिखाते हैं, जो आप में है टैलेंट वो निखारने के लिए, और हम भी आप लोगों को सिखाते हैं। तो ये बहुत मजा आता है, ये देख लीजिए, ये सारी चीजें, नाटक फिर होता है, उसमें डांसेस होते हैं, भांगड़ा हो गया, ये सारी चीजें, डांडिया है, सब कुछ होती हैं इसमें। अब देख लीजिए, ये सुमिता श्रीकांत दालमिया इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन जिनको शील्ड मिली है, हाँ, उनकी फोटोग्राफ आपके सामने है। ये टैलेंट शो की या निर्जर इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल की, डांस की, अलग अलग कॉलेजेस दूसरे आते हैं ना, वो भी प्रस्तुत करते हैं। फैशन शो हो गया, बहुत सारा मजेदार आप लोग इसमें एंजॉय कर सकते हो। और दिस इज यशस्विनी, ये हमारी एक स्टूडेंट है मोनिका तमंग करके, उसको यशस्विनी का खिताब मिला था, तो उसके पिक्चर्स में थोड़े थोड़े पिक्चर्स हम लोग इसमें देख लीजिए। ये एक स्वाति करके स्टूडेंट है, ये सारे पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, पर मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूँ। दिस गर्ल इज स्टडिंग इन एसवाई राइट नाउ, एसवाई बीए डिग्री कॉलेज में। ये हमारे पूजा मैडम आपके सामने हैं। तो ये सारी चीजें जो देख लीजिए, हमारे बीएम रिया गर्ल्स कॉलेज एंड एसडीआईएमएस का मिलकर के हम लोग, ये जो यशस्विनी है, देख लीजिए कितना मस्त फोटोग्राफ लग रहा है कि नहीं? आपको जाना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। यस यस, तो जिनको लग रहा है मजा आ रहा है प्रेजेंटेशन देखने में, तो वो लिखेंगे नंबर 5 इन द चैट बॉक्स। और ये पूरे देख लीजिए क्राउन पहने हुए हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको यशस्विनी रनर अप एंड फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप मिला हुआ है। और ये आपके सारे टीचर्स यहाँ पर हैं। मजा आ रहा है? ओके। तो इस तरह के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं आपको मैंने बता दिए। कुछ भी अगर छूट गया, हाँ, हम विजिट्स भी लेके जाते हैं। मुझे इतना बताना मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन आगे वाले टीचर्स को भी बताना है, तो मैं उनको भी उनके लिए भी मैं चांस दूंगी। मैं 2 मिनट और बात, अगर क्षमा मैडम इजाजत देती हैं तो 2 मिनट बात करूंगी। मैडम मुझे चैट बॉक्स में अंकित कर दें माइक खोल के की। यस, देखो चैट बॉक्स में आ रहा है, मैडम कॉलेज कब स्टार्ट होगा, ऐसा लग रहा है। तो मुझे 2-3 चीजें आपको बतानी है। ट्रेड फेयर होता है दोस्तों हमारे यहाँ पे, माने कि आपको अनुभव देने के लिए कि कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, इतना धमाल होता है। मैं ट्रेड फेयर भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये देख लीजिए, आपको कॉलेज स्टार्ट होने की जल्दी है ना, मुझे भी। तो ट्रेड फेयर, उसका नाम उन्नति है, हमारे मैगजीन का नाम भी उन्नति है, जिसमें आप लेख लिख सकते हैं। और ये जो ट्रेड फेयर है उसमें आप स्टॉल्स लगा सकते हैं। देखो अभी इतने सारे आकर्षक चीजें आपके सामने आएंगी, स्टॉल्स। ओके, बहुत मजा आता है, आप लोग ही सजाते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल मैडम आपके सामने थी, डॉक्टर संतोष कौलकाक मैडम। ओके, और देख लीजिए ये हैं, ये अलग अलग स्टूडेंट्स ट्रेड फेयर को लेकर के हैं। तो ट्रेड फेयर भी होता है, और हम विजिट्स भी लेकर जाते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो हम विजिट लेकर जाते हैं। ये एक विजिट बीएमएस की आपके सामने है, मुद्रा संग्रहालय में हम विजिट लेके जाते हैं, और बहुत सारी जगह देख लीजिए एजुकेशन विजिट्स लेके जाते हैं। कभी 7 दिन का प्रोग्राम बाहर होता है, तो कभी 1 आध 2 दिन के कैंप जाता है। यस यस, आपको आगे सब कुछ पता चलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ओके, तो जो भी एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे होती हैं, तो मैं आप लोगों को ये खाली थोड़ी सी एक चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, खास करके कल्चरल के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, ये देख लीजिए, ये सारी चीजें कैंप्स वगैरह है, पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन आपको बताएंगे सारा कुछ। ओके, ये इस तरह से देख लीजिए, एक और सुंदर फोटो रसफुहार का आपके सामने है, बहुत सुंदर फोटो है। तो इस तरह से आप लोगों को, आप देख लीजिए, ये एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, माने एक्टिंग के थ्रू भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ड्रामा है, डांस है, एक्टिंग है, वन क्या कहते हैं, मिमिक्री है, माइमिंग है, सिंगिंग है, ग्रुप सिंगिंग है, सब कुछ जो आप करना चाहते हो। देख लीजिए, वाह कितना मजा आ रहा है। मुझे चैट बॉक्स में बहुत जबरदस्त कमेंट मिल रहे हैं, तो आपको आनंद आ रहा है। तो इस तरह से हम कल्चरल और को करिकुलर एक्टिविटीज गर्ल्स आप लोगों के लिए हम लोग आप लोगों के लिए ही ये सारी एक्टिविटीज लेके जाते हैं। अब ये कल्चरल को करिकुलर के बारे में तो मैंने आपको बताया। तो जिसको भी सिंगिंग, डांस, प्ले, बातचीत करना, वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें इंटरेस्ट है, वो तैयार हो जाए, अपनी अपनी प्रैक्टिस घर में करना शुरू कर दें, ताकि जब भी कॉलेज ओपन हो जाएगा
हम लोग और बहुत सारे एक्टिविटीज और भी होती हैं, जैसे कॉलेज में लोग आते हैं, सेमिनार्स देते हैं, नाटक, खास करके अलग अलग डिपार्टमेंट, ये हिंदी विभाग ने आयोजित किया था नाटक, बाहर से लोगों को बुलाया था ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चले कि अभिनय क्या होता है, कार्यशालाएं लेते हैं। देख लीजिए कितना सुंदर है, कितना मजा आ रहा है। मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉलेज कब स्टार्ट होगा? यस, लविंग दिस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे। देख लीजिए आपके कॉलेज का ये गेट है और एक आपको एक सामने जो इवेंट है वो भी आपको प्रस्तुत हो रहा है, वो इवेंट। ओके, अब आपको कुछ चीजें मैं और भी बताना चाहती हूँ। देख लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हम जीवन में गुजरते हैं, आगे जाते हैं, तो हमारे कुछ कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, वो समस्याओं के रूप में आती हैं हमारे यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों को क्या हो जाता है कि जब समस्या आती है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। तो आपने सुना होगा कि आपको काउंसलिंग की नाम मालूम होगा आप लोगों को, है ना? तो काउंसलिंग जो है वो भी हमारे कॉलेज में है, जो है मंत्रणा के रूप में सेल है, काउंसलिंग सेल, और वहां पे आप अपने प्रश्नों को लेके आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चर्चा करनी है, कोई भी चीज के बारे में आप लोगों को बताना है, तो आप लोगों को जरूर मंत्रणा में आपको कांटेक्ट करना चाहिए, और वो सारी चीजें आपको, आपकी सारी चीजें मंत्रणा नाम के काउंसलिंग सेंटर में भी बता दी जाएगी। तो इस तरह से मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ, और मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे अभी एंजॉय किया, आई एम श्योर कि आप लोगों को वहां पर भी जब आप कॉलेज में आएंगे आपको एंजॉय होने वाला है। तो ध्यान में रखना, कल्चरल को करिकुलर एक्टिविटीज और जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं वो आपके विकास के लिए हो रही है, आपके एंजॉयमेंट के लिए हो रही हैं, और हम भी ये आप लोगों को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन के बहुत बड़े उपकार है टेक्नोलॉजी के, हमारे साइंटिस्ट के, इंजीनियर्स की, कि अगर इन लोगों ने ये सारी चीजें नहीं की होती मुहैया, और आपके अभिभावकों की खास करके कि वो आपको बता रहे हैं, टीचर्स के, प्रिंसिपल मैडम के, हमारे मैनेजमेंट के, हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिन्होंने ये सारा अरेंज किया। पर अब हम सब लोग राह देख रहे हैं बेसिकली से कि कब कॉलेज खुलेगा और हम कब कॉलेज में मिलेंगे। तो जब कॉलेज खुलेगा मैं जरूर आपकी क्लास में आऊंगी, और जब जो भी प्रोग्राम होगा हम वहां पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगी, एंजॉय कीजिए। मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ और मैं फाउंडेशन भी पढ़ाती हूँ, और मैं मंत्रणा में आपको सलाह और मशवरा भी दूंगी आपकी मदद से। तो आप जरूर जरूर एंजॉय कीजिए। एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम आपका, और आपसे बात कर रही थी श्रुति रानड़े। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैडम को, जूनियर कॉलेज क्षमा मैडम को, महेश्वरी मैडम को, सुमा मैडम और पूरे स्टाफ को कि आपने मुझे बहुत सारा समय दिया और जूनियर कॉलेज के फ्रेंड से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। Thank you. Welcome to the college. Thank you. Thank you, Maheshwari. अब आपके सामने आ रही हैं, आपको और भी बहुत सारी जानकारियां आपको चाहिए, अलग अलग कमिटीज हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आपके सामने हमारे जूनियर कॉलेज की सपना भामरी मैडम को, आपके सामने प्रस्तुत करेंगी एनएसएस एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सपना मैडम को। थैंक यू। Thank you, Shruti ma'am. थैंक यू सपना। Good morning, parents and students. I am Mrs. Sapna Bhamri from the Commerce Department. I shall be teaching you SP, Secretarial Practice, and Bookkeeping and Accountancy. I am also NSS Program Officer. NSS के बारे में सुना है? NSS जानते हैं आप लोग? शायद आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा NSS क्या है। तो
NSS stands for National Service Scheme और NSS का मोटो है Not me but you, मतलब अपने से पहले दूसरों को महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना. तो NSS activity is a very important activity from in our college from many years, and we are conducting NSS camps, regular activities since many years, and NSS aims to instill the idea of social welfare in students. मतलब स्टूडेंट्स में हमारी सोसाइटी के प्रति जागरूकता जगाने के लिए हम NSS एक्टिविटीज करते हैं to provide service to the society. And NSS helps the students' development and appreciation to other person's point of view, and also show consideration towards other living beings. So, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेगुलर एक्टिविटीज और स्पेशल कैंप कंडक्ट करते हैं. रेगुलर एक्टिविटीज का मतलब है पूरे साल भर जो एक्टिविटीज होती हैं थ्रू आउट द ईयर. बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, आपको एनवायरमेंट के बारे में जागरूकता लाते हैं हम लोग. फिर पल्स पोलियो की ड्राइव होती है, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, हेल्प करते हैं. फिर क्लीनलीनेस ड्राइव्स होती हैं, रैलीज होती हैं. ऐसे बहुत सारी रेगुलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर होती हैं. और उसके अलावा स्पेशल कैंप होता है. स्पेशल कैंप 7 डेज के लिए कैंप जाता है. और ये कैंप हम लोग ने एक विलेज अडॉप्ट किया है, उमरोली गांव, जहाँ पे 7 दिन के लिए स्टूडेंट्स के साथ में टीचर्स भी जाते हैं, वहीं पे रहते हैं. हम लोग अपने कम्युनिटी वर्क करते हैं, वहाँ पे श्रम दान करते हैं. बच्चों को मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं उनसे उधर. वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी होती हैं, जैसे कि वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का. और फिर लास्ट ईयर तो हम लोगों ने, लास्ट ईयर मतलब ये वाला नहीं, उसके प्रीवियस ईयर में, यहाँ इस साल तो पैंडेमिक था इसलिए हमारा कैंप नहीं जा पाया, लेकिन हम लोग ने डॉक्टर की टीम हम लेके गए थे जहाँ पे वहाँ पे जो स्कूल है, कम्युनिटी है, वहाँ के बच्चों का सब चेकअप, मेडिकल चेकअप किया, उनको मेडिसिन फ्री में दी. इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हम लोग करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल हमारा कैंप नहीं जा पाया बिकॉज ये पैंडेमिक की वजह से, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी फिर से हमारा NSS कैंप जाएगा 7 डेज के लिए. तो NSS के में हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो हम लोग 50 वॉलंटियर्स 11th स्टैंडर्ड से होते हैं और 50 वॉलंटियर्स 12th से होते हैं, और 3 प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं. आपको जब नाम देने होंगे हमारे टीचर्स को, जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तो हम आपसे नाम मांगेंगे. आपको अगर NSS में नाम देना है तो महेश्वरी मुर्डेश्वर मैडम और मैं जबीन मोमिन और मैं सपना भामरी मैम, हम लोग तीनों NSS प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं. तो आप अभी पैंडेमिक होने के कारण हम आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज ही करते हैं. तो जब सिचुएशन नॉर्मल होगी उससे पहले हम आउटडोर एक्टिविटीज नहीं होंगी. जहाँ भी जाते हैं बच्चे, वहाँ पे टीचर्स के साथ में जाते हैं. तो आप लोग फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो नाम देंगे, जब हम मांगेंगे नाम, तो हम लोग उनको, पर आप लोग को सीरियसनेस और डेडिकेशन होना है कि हमने ये काम करना है अच्छे से, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल काम है. इंजॉय भी करोगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. यही NSS के बारे में मुझे बताना था, दैट इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप leadership quality, confidence, and it provides hands-on experience to you about giving service to the community. तो मैं ये कह सकती हूँ कि not all of us can do great things, but we can all do small things with great love. Okay, so I'll now call upon our sports teacher Anita Patil madam to continue from here.
morning, one and all. मैं मिसेस अनीता पाटिल, स्पोर्ट्स टीचर। मेरा जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। मैं खेल अपना कॉलेज में जो खेल होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रैक्टिस या सब एक्टिविटी जो भी है उसके बारे में। खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। खेल से आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में खेल होना चाहिए, क्योंकि खेल से अच्छा शिक्षक है जो अत्यंत मूल्यवान बातें हमें सिखा सकता है, जैसे अनुशासन, एकता, जीतने का जज्बा। खेल व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, जब माध्यम से ही वह अपना शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विकास कर पाता है। इतना ही नहीं, खेल में बहुत सारे करियर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है आपके लिए। उसमें जैसे कि अभी आप देखे जाए तो विश्व में क्रीड़ा विश्व सबसे फास्ट बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, जिसकी आमदनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर करना है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन है, जैसे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, ग्रासरूट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एजेंसी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एजुकेशन। इसमें आप बीपीएड करके, जैसे एमबीए वैसे बीपीएड स्पोर्ट्स में होता है, जैसे एमएड वैसे ही स्पोर्ट्स में एमपीएड होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड, और बीएड मींस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स जॉब मिल सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हो सकते हैं, रेलवे में, रेवेन्यू में या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी इसमें स्पोर्ट्स में आपको अवेलेबल है। एथलेटिक्स, अपने कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। कॉलेज, अगर आप अपना कॉलेज का ग्राउंड, हम अगर इंडोर एक्टिविटीज करना है तो इंडोर एक्टिविटीज के लिए हमें एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का जो हॉल है वहाँ पे हम इंडोर एक्टिविटीज करते हैं। वहाँ पे हमारा बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, मलखांब होता है, बॉक्सिंग, कराटे, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हम वहाँ पे लेते हैं। जिनको पार्टिसिपेट होना है, जो लड़कियां पार्टिसिपेट, जो स्टूडेंट्स अपने इसमें पार्टिसिपेट हैं, उनको हम वहाँ पे लेके जाते हैं। और इंडोर गेम्स के लिए अपने यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है ऊपर, वहाँ पे हम योगासना, चेस, कैरम ये भी प्रैक्टिस करवा लेते हैं। फिर आउटडोर गेम्स के लिए हमारे यहाँ यहाँ पे एक फेलोशिप ग्राउंड है, या अगस्त क्रांति ग्राउंड है। अगस्त क्रांति बाजू में एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस वहाँ पे किया जाता है। कबड्डी, खो खो, अपने यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज वहाँ पे लिए जाते हैं आउटडोर गेम्स के। जैसे कि अपने यहाँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्राइजेस भी लाए हैं अपने कॉलेज में। और अभी कल ही एक स्टूडेंट्स, कल मतलब 1-2 महीने के पहले उसने एक स्टूडेंट से अपने यहाँ ऋतु खेतम करके उसने हैंडबॉल और थ्रोबॉल की प्लेयर है। उसने स्टेट ऑर्गेनाइजर बाय 5th आरडी यादव स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल एकेडमी स्टेट्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, टीम महाराष्ट्र मुंबई हैंडबॉल एसोसिएशन, वहां पे उसने मैन ऑफ द मैच मेडल, उसको वहां एक मैच में मैन ऑफ द मैच मेडल मिला है उसको। फिर थ्रोबॉल में स्टेट ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्टिविटी वुमेन स्पोर्ट्स क्लब, इसमें भी वो टीम को सेकंड प्लेस मिला है थ्रोबॉल में। और हैंडबॉल में उसको मैन ऑफ द मैच मेडल मिला है। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, वॉलीबॉल की जो टीम है अपनी, वो हर साल फर्स्ट या सेकंड प्राइज कॉम्पिटिशन के लिए हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जाते हैं। डीएसओ कॉम्पिटिशन होता है, डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन होता है, जूनियर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होता है। इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में हमें यूनिवर्सिटी में भी खेलने के लिए जाना पड़ता है, या एसोसिएशन से भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। इसके बाद जो अपने यहाँ जो कोचिंग चलती है, चेस कोचिंग है, कैरम कोचिंग है, कबड्डी, खो खो,
वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारी कोचिंग अपने कॉलेज में दिए जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में अपना और अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं अपने कॉलेज से सुपरवाइजर कुसुमा दबानी मैम को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू। Ma'am, your voice is not proper. Thank you, Anita. Thank you, everyone. Respected Principal Ma'am, Dr. Santosh Kaul Kak, Associate Professor of Psychology, Madam Shruti Ranade, Vice Principal Mrs. Kshama Tamankar, my colleagues and friends, dear students and parents. A very good morning to everyone present here. BM Ria Girls College and SDIMS welcomes the 11th standard students batch of 2020-2021. In this unprecedented time, you appeared for exams, graduated to the next level, took admission, and reached so far. This in itself is a great achievement. I congratulate you all for your achievement. I assure you that the management of our college, Marwadi Sammelan, teachers, and non-teaching staff of BM Ria, we are all with you in your march for fulfilling your dreams of being better individuals, better human beings, and making our country a better place to live. In the process, we have to follow certain norms, set of values, etiquettes that our college strive to inculcate in our students. I, Mrs. Kusuma Dabali, is a supervisor of junior college and I'm teaching economics. I'm here to talk to you regarding those norms and etiquettes that we have to follow. Before I begin the actual do's and do nots, the most important thing that I would like to tell you all is to accept the situation that we are in, because this is going to be a way forward in foreseeable future. And we must make the most of the resources available to us, be it your online classes, guidance from teachers, support of your parents, etc. Moving on to the etiquettes that I mentioned, you must be respectful while communicating with teachers and peers, okay? Because Vidya Vinayena Shobhate, the one who is educated must have humility at heart, and we want to inculcate those values in our students. You must be punctual and regular in attending lectures. Though it is online, we may not be able to see each and everyone every day as we would like to, and we do it as we do it in a physical classroom. But you must be aware that with these available resources, we must make best use of it. Okay, and be appropriately dressed. अच्छे तरह से ड्रेस अप होके फ्रेशन अप होके क्लास जब शुरू होता है तब बैठना है आपको while attending lectures. Okay, and also you sit upright
and when lecture is going on, because that gives you the feel of guys, do you hear me? सुनाई दे रहा है? Yes, it is now proper. Okay. So lectures में बैठते वक्त आपको अच्छे से ड्रेसअप होके जैसे आप फिजिकल क्लासरूम में जाते हो, यानी कॉलेज में अगर जाना हो तो आपको जैसे जाना होगा ऐसे तैयार होके बैठो, सिट अपराइट, बैठ के ये करो, सो के या ऐसे कैसे भी पड़े रह के लेक्चर्स अटेंड नहीं करना, क्योंकि that doesn't give you that feel, you know, you won't be serious while listening to lectures and understanding what the teachers are teaching. Okay, and be attentive. Mute your microphone and camera unless and until you are told to unmute, because that disturbs the process of teaching and learning, as you all know. Unless you are asked to unmute, don't unmute it. And do check messages in the WhatsApp group to update yourself regarding assignments, links for participating in various co-curricular activities to be conducted by the college, and also the exercises and questions that we post sometimes in the WhatsApp group. Okay, so you have to get yourself updated. And do save the links of every subject teacher for attending lectures every day. Please don't wait for someone to share it every day. Okay, once we have made the group already, you are there in the group, WhatsApp group, and we share the link of every subject teacher and also timetable every day, and you have to be in touch with that, and you have to update yourself, and you need not wait for someone, some class leader or say some teacher to post it every day. Please save that link and make the process smooth, and we can utilize the maximum time that is available to us. And when we are going to meet you in the college, then we have a separate, a different set of things to tell you, and maybe we will do that once we are going, once we meet physically in the college. I wish you all good luck, and now I call upon Madam Kshama Tamankar, our Vice Principal, to update you regarding the academics, which is a core of the entire process of teaching and learning. Thank you very much. I wish you all best of luck once again. Take care. Stay healthy. Thank you. Thank you, Kusuma Madam. Good morning, dear students, and good morning, parents. एंड पेरेंट्स को मैं विशेषतः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप समय निकालकर अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन हमारा ये मीटिंग अटेंड कर रही हो हमारे. अ वार्म वेलकम इन द न्यू एकेडमिक ईयर. माई सेल्फ क्षमा ताम्हनकर, वाइस प्रिंसिपल ऑफ जूनियर कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स. Today, for the first time, we have to conduct this orientation meeting online. आज हमें पहली बार ये ऑनलाइन मीटिंग लेनी पड़ रही है ओरिएंटेशन की. हर बार हमारी कॉलेज में हॉल में ये मीटिंग अच्छे से हो जाती है, पर ये कोविड पैंडेमिक की वजह से कुछ भी अपने हाथ में नहीं है. जो है उसी का हमको अच्छे से उसका यूज करना है. आज मैं आपको हमारे कॉलेज के सबसे पहले पिछले साल के 12वीं के रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी. हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स ओवरऑल 87.33% आए हैं, जिसमें आर्ट्स फैकल्टी के रिजल्ट 77% है और कॉमर्स फैकल्टी के रिजल्ट 91% है. सब मिलके हमारे कॉलेज से 23 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिले हैं. 158 स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास मिला है और 197 स्टूडेंट्स को सेकंड क्लास मिला है. सिर्फ 30 स्टूडेंट्स है जिनको पास क्लास मिला है.
आर्ट्स में हिंदी मीडियम की टॉपर हमारी है पेंढारी सुशांति, जिसको 71% मार्क्स मिले हैं। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम की टॉपर है मिस चौहान नीरू, जिसको 74.62% मार्क्स मिले हैं। आप सब जानते हैं आर्ट्स फैकल्टी में मार्क्स मिलना, परसेंटेज स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। कॉमर्स की टॉपर है हमारी घराना अक्सा with 85.85%. It is rightly said that great things never come from comfort zone. The harder you work for something, the greater you will feel when you will achieve it. जितनी ज्यादा मेहनत करके हमें अगर यश मिलता है तो उसका महत्व हमें उतना ही ज्यादा होता है। हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छी मेहनत करके पढ़ाई की और कामयाबी हासिल की। हम सारे स्टूडेंट्स को बधाई देते हैं और इस साल के हमारे 11 स्टूडेंट्स से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वे भी अच्छी मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट लाए और अगले साल 12th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड में अच्छी कामयाबी हासिल करें। अभी हम थोड़ा सा एकेडमिक की ओर, मतलब और लेक्चर्स वगैरह की ओर जाते हैं। इस साल की शुरुआत एक्चुअली बहुत देर से हो गई है। लगभग 9 महीने हो गए हैं आपके एग्जाम होके। पढ़ाई में बहुत सारा ब्रेक हो गया है। ये पैंडेमिक की वजह से 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स हमारे थोड़े से लेट हो रहे हैं और वो ऑनलाइन ही होंगे। अभी तक ऑफलाइन लेक्चर्स के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। लेक्चर्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे। आपके ग्रुप्स में आपको इसकी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट टीचर्स को हमने ग्रुप में ऐड कर लिया है। लेक्चर्स अटेंड करने के लिए मेरी पेरेंट्स से थोड़ी रिक्वेस्ट है। इसके लिए जानबूझ के हमने इस मीटिंग में पेरेंट्स को भी बुलाया है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा खर्चा ज्यादा होने वाला है। मतलब लैपटॉप है या मोबाइल है, तो ये मोबाइल जरा एंड्रॉयड मोबाइल जिससे बच्चे लेक्चर अटेंड अच्छी तरह से कर पाएंगे। मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ी सी सुविधाएं उपलब्ध करा के दें। रोज हम लोग 4 लेक्चर रखेंगे और वो एक लेक्चर 45 मिनट्स का होगा। पौने घंटे का एक लेक्चर होगा और ऐसे 4 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स के लिए टीचर्स मोस्टली जूम या गूगल मीट, ये इन्हीं एप्स का उपयोग करेंगे। तो ज्यादा ऐप आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, पर मीट और जूम ये 2 ऐप आपको डाउनलोड करने हैं। हर डिवीजन के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और सारे लेक्चर्स की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी। ये लिंक हम कोशिश करेंगे कि बार बार नहीं बदलेंगे, सेम लिंक रहेगी। ये लिंक आपको सेव करके रखनी है, क्योंकि हर बार नई लिंक बनाना और वो भेजना कहीं जाएगी नहीं जाएगी, तो ऐसे हो सकता है। तो आपको एक ही लिंक सेव करके रखनी है। गर्ल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से जैसे जैसे सर्कुलर आएंगे वैसे वैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को उसके बारे में सूचनाएं देते रहेंगे। अभी आपके मन में कितने सारे सवाल होंगे। एक तो 11th स्टैंडर्ड इतना लेट स्टार्ट हो गया है, हमारे कितने एग्जाम्स होंगे, हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, फिर हमारे पोर्शन कितना होगा, सारा पोर्शन होगा या नहीं होगा, या फाइनल एग्जाम कब होगी। तो इसके बारे में जरा मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि जब भी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हमको मिलेंगे, हम वैसे वैसे आपको ग्रुप में उसके बारे में सूचनाएं दे देंगे। फिलहाल हमें ऐसा बताया गया है कि पूरा पोर्शन करना है, तो हम पूरे पोर्शन के जैसे शुरू करेंगे। इसके लिए अभी आपको आवाज नहीं आ रही है क्लियर? हेलो, हाँ मैम आ रही है आवाज। आ रही है नेटवर्क इशू है। ओके। हाँ, जरा सा कोशिश करना बेटा, एक बार मीटिंग में से निकल जाके वापस ज्वाइन हो जाओ तो शायद ये समस्या हल होती है। गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक
आप सबको बच्चों को खरीदनी है। जैसे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक जैसे टेक्स्ट बुक खरीदे थे अपने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड की जो बुक्स आती है, वही बुक्स हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए यूज करेंगे। सो टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ाई होगी, तो आपको सभी को गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक खरीदनी है। ये बुक आप जब ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करोगे तो आपके सामने होनी चाहिए। ओके, टीचर्स प्रेजेंट करेंगे, पर फिर भी पेंसिल से आपने ये बुक्स पे आपको जो भी कुछ लिखना है पेंसिल से लिखना है, या देखकर आपको नोटबुक में उसकी नोट्स लिखनी है। ऑनलाइन लेक्चर्स आपको रेगुलर अटेंड करने हैं, जैसे कुसुमा मैडम ने इसके लिए आपके बारे में मतलब इसके बारे में आपको बहुत अच्छी सूचनाएं दे दी है। पर फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल होगी, कोई डाउट होगा, किसी को कुछ पूछना होगा, तो लेक्चर के दौरान या तो फिर ग्रुप में आप लोग टीचर्स से पूछ सकते हैं। हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। आपको कोई भी अगर मदद चाहिए तो आप ग्रुप में लिखना या तो लेक्चर के बीच में पूछ लेना, तो आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी। मुझे आशा है कि बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। कल से लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं और पढ़ाई शुरू करनी है। ऑल द बेस्ट। अब मैं हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौल काक मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैडम इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस, टू मोटिवेट अस, एंड शी इज ऑलवेज विथ अस। Whatever things we do in the college is with her support, and whatever achievements we have got are because of her support and motivation. Thank you, madam. I request respected principal madam to address the students and parents. Thank you so much. Over to Dr. Santosh Kaul Kak madam. Hello. Hello all. Am I visible? No, ma'am. नहीं दिख रहा है। You have to pin, I think. Now? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, And not visible? Not visible? Not visible. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Thank you. This is new normal. The first thing when we meet online, we ask, am I audible? Am I visible? Yes. Good morning, everyone, and a warm welcome to you all. I give a hearty and warm welcome to Vice Principal of our junior college, our faculty members, staff, degree college in charge cultural activities, Ms. Shruti Nanade, parents, and all our dear students. I extend a warm welcome to all of you to this session, which is an orientation program from your own college, BM Ruya Girls College. You must know that this college was established by philanthropic members of Marwadi Sammelan, who are always in the forefront of propagating women education, because they believed that women are the real architects of society. And if we wish to change the society, we need to educate and empower women. Today, this institute has
become promising institute which is striding towards excellence by providing value-added quality education, constant encouragement and support from management, and everything we owe to our dedicated staff members. And hard work of you all, I mean students, plays a great role in this achievement. Even if we work hard, we give support. You people don't work hard, nothing can be achieved. So you all play a key role in achievement of your life, your family, as well as the institute you are attached to. Why did I say attached to? The moment we come into this life, we are attached to a cord. When that cord is removed, we are attached to a number of cords. We have bonds with our parents, our family, our friends, and slowly many bonds grow up. So now, as you are a member of BM Ruya Girls College, a new bond, a new cord is there for you. So this is your institute. We are proud to be an institution that provides a holistic student-centric environment, and the college believes in judicious blend of the traditional and the modern values, an amalgam of academics and extracurricular engagements to shape each student into a confident, dignified, and responsible human being. We offer regular commerce and arts courses at junior college level and undergraduate courses in BA Hindi medium, BCom, and BMS in English medium at degree college level. The college also offers postgraduate courses in MCom and MA. BCA and BMM courses were started in the year 2012, offered under Sitaram Devra Institute of Management Studies, which is also run by our management in this building. Academic activities enhance academic excellence and growth of our students. We assess the students' strengths and weaknesses and try to address their needs through various courses, add-on courses, bridge courses, computer courses, English speaking courses, personality development courses, and so many. So today, with great pride, I share with you the recent achievement by us is that as a result of our constant efforts toward quality enhancement, we have obtained B+ grade in NAAC accreditation third cycle. Our students have performed exceedingly well in the semester exam initiations conducted by the college, conducted by SNDT Women's University, and board exams. In order to accomplish our goal and overall, which is overall development of girl students, we conduct a wide range of co-curricular activities, competitions, presenting interdisciplinary approaches to learning. The institute conducts various activities, seminars, workshops, competitions throughout the year at college level as well as intercollegiate level, which you will be experiencing now onwards. So we welcome you to this new family. On this occasion, I wish to express my genuine gratitude towards the management, faculty, non-teaching staff, and students, and all the well-wishers for their support. I'm sure that our collective endeavors shall take our college to greater heights in serving
the society in a meaningful and positive manner. I once again, with warm heart, welcome you all to this institute and wish a good, successful career, a happy life, content life, beautiful relationships in your life. I wish you a great happiness and success, because success is that which we want you to achieve in your life. And हम साथ ही ये भी चाहते हैं कि आप जीवन भर खुश रहें, संबंधों की ऊष्मा आपको मिले जिसकी आज संसार में हर किसी को बहुत जरूरत है। आपका कॉलेज आपका परिवार है और अब से ये भी आपके अपने प्रियजनों के रूप में आपके साथ है। हमारे सारे प्रयास बच्चों, सारे आयोजन आपकी सफलता के लिए हैं, आपकी खुशी के लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत शीघ्र जब स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, आपसे, पेरेंट्स से फिर एक बार मुलाकात होगी। हम आपकी खुशनुमा जिंदगी के लिए, आपके सुखद भविष्य के लिए हरदम कामना करते हैं। दिल में बसोगे तुम रोशनी की तरह, खुल के बहो तुम हवा की तरह, ये हमारी उम्मीद है। हमें विश्वास है कि एक बार इन नए आयोजन से जुड़ने के बाद आप अपने पंख फैलाओगे, क्योंकि ये धरती और ये आकाश हमारे बच्चों की उड़ान के लिए उनका इंतजार कर रहा है। और एक दिन ऐसा आए कि आप अच्छी तरह से अपने पंखों को समेटकर उड़ो, पर फिर ये भूलना मत कि पांव हमारे जमीन पर भी हों। ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है आज के युवा पीढ़ी के लिए, आज के लिए। तो चाहे तुम छा जाओ घटा की तरह, खुल के बहो हवा की तरह, पर याद रखना कि जमीन है जो हमें सब कुछ देती है और हम इस जमीन से आए हैं, जमीन में ही लौट जाना है। तो हम जीवन में आदर्शों मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त करें, यही आपका ध्येय होना चाहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your blessings and those words of wisdom. Students, you will be keen to know your teachers who are also your subject experts. So let us all meet them. I request, I'll call upon all the teachers one by one. I request Nazdeen ma'am to kindly introduce yourself. Hello. Kindly pin your camera so that the students can see. Am I visible? Hello. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Good morning, parents and my dear students. I, Mrs. Nazneen Sheikh from Commerce Department, will be teaching you bookkeeping and accounting. Students, please आपका माइक बंद रखिएगा, बहुत डिस्टर्बेंस है पीछे. Students, kindly mute your mic. आप लोग please mute your mic, students. Anita madam, your mic is on. Anita Patil madam. Hello. Good morning, parents. Good morning, parents and my dear students. I myself, Mrs. Nazneen Sheikh from Commerce Department, will be teaching you bookkeeping and accountancy. मैं आप सभी का बीएम रुया से जुड़ने और रुया परिवार में शामिल होने के लिए बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ. So students, let's begin your college life with full of energy, passion, enthusiasm, and determination. Students, you all deserve the best, and we at BM Ruya are prepared to give you the best. Good luck and all the best for your future. Thank you, students. Now I request Malini madam. I request Malini ma'am to introduce.
Good morning, dear students. Hope you all are doing well. I will be teaching you English, and we are two faculty members in our department. Myself, Mrs. Malini Anvekar, and my colleague, Mrs. Maheshwari Murdeshwar, who commenced the program and welcome you all. You all have heard her in the beginning. Now, I'll not be talking much about my subject because as the lectures start, we are going to guide you accordingly. I want to talk to you about the teachers here. I give full assurance to you all that we as teachers give our best to our students, and we expect the same from you all. Okay, so if you take efforts, we are going to give you the best, and we will be able to go ahead, and you all will be very successful. Now about your batch. Your batch of 2020-21. Your batch is a unique batch, a beautiful batch, wherein we have got an opportunity to meet you people virtually. And because of this, in fact, when our 12th standard lectures started, that time, we, in the month of June, we all were new with this technology. So our students, 12th standard students, in fact, helped us a lot while we started with the lecture. They guided us so many times because for me, I am not that techno savvy, but they helped me. They cooperated so much with me. So, your batch is a unique batch wherein we will be, in future when we'll give lectures to the new students, newcomers of 11th standard in future, we will always say that when this pandemic was there in this year, in the year 2019 when it started, and when we had to take lectures virtually, the batch of 2020-21 was a batch wherein we got a chance, not only we, in fact, in the history of education, we got a chance to teach students online. That was never ever done. So if we take this in a positive way, we have learned many things from our students, and you also are going to learn many things from us. So God bless you all, and hope you all are ready to learn virtually things from us till we meet face to face. So hope everyone is ready for this. Are you ready, all of you? Just you can write. Yeah, I can see. Yes. Okay. So let's go on and do our best. All the very best, dear students. God bless you. Bye. Thank you. Rightly said, Malini ma'am. I think the students and we too are going to create history. Yeah. Now I request Anita Jain ma'am to introduce. हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी जी सुनाई दे रही है। हाँ यस। हाँ, मैं अनीता जैन, मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। आर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम को मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी, और मेरा मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा, पर आपका प्रयास कंटिन्यू रहना चाहिए। यदि आपका प्रयास और मेरा मार्गदर्शन साथ रहेगा तो 100% मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आपका थिंकिंग, पर्सनालिटी, मेमोरी सभी इंप्रूव होगी। इसलिए फ्यूचर के लिए आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। Okay, next we have Suhasini ma'am. Kindly introduce yourself. Am I audible? Yeah. A very warm welcome to all of you in our own college, your family, BM Ria Girls College. Myself, Suhasini Nikam, I teach economics. I would like to congratulate all of you, and I want to convey my best wishes for your further journey. Thank you so much. Okay, now I would like to call Manju madam. Namaskar students. हाँ, नमस्कार।
आप सबको आपके ही अपने कॉलेज में, बीएम रिया कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी और थोड़ा सा मैं हिंदी विभाग के बारे में ही आपको बताना चाहूंगी कि जो सिलेबस में है उसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगिताएं, एक्टिविटी हिंदी विभाग में होती रहती हैं पूरे साल। नाटक प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी लेखन, अंताक्षरी, कविता प्रतियोगिता, स्वरचित कविता प्रतियोगिता, कहानी लेखन, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती है हिंदी विभाग में। और ये सिर्फ अपने कॉलेज में नहीं है, इंटर कॉलेजिएट भी होती है, बाहर से भी बच्चे आते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। जो बच्चे इसमें टैलेंटेड हैं वो पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट करेंगे लेक्चर के दौरान। और ये इन सब के अलावा स्टूडेंट्स, हिंदी विषय जिस तरह की कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी में क्या है, नो डाउट कविता, कहानियां, नाटक ये सब तो हैं। उसके अलावा अब हिंदी में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि जिसको आप कैरियर के रूप में, प्रोफेशन के रूप में अपना सकते हैं। आपके सिलेबस में वो चीज दी गई है कि सपोज जैसे आपको रेडियो जॉकी बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है। 11th के सिलेबस में ही आपको रेडियो जॉकी अनुराग पांडे जी का जो है इंटरव्यू है, उनका लेसन है, तो आपको उस क्षेत्र में कैसे जाना है, समाचार लेखन में कैसे जाना है, आपको जर्नलिज्म के फील्ड में कैसे जाना है, आपको एंकरिंग करनी है, उद्घोषक बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, संवाद लेखन, फिर हिंदी कमेंट्री के क्षेत्र में अगर आपको जाना है, आपको धारावाहिक लेखक बनना है, आपको फिल्म में लेखन करना है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में ऐड की गई हैं और उसको बकायदा आपको बताया गया है कि कैसे आपको शुरुआत करनी है, कैसे आपको उस क्षेत्र में जाना है, आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे ये करना है लेकिन पता नहीं होता है, रास्ता नहीं कि कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरह पूरा जो हिंदी सिलेबस है पूरी तरह से बदला है, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिपूर्ण है। नाटक के फील्ड में आपको जाना है, आईएएस है, पीसीएस उस क्षेत्र में, तो मैंने जिस तरह कहा कि संवाद लेखन है, डायलॉग्स राइटिंग है, राजभाषा अधिकारी, सहायक अधिकारी, अनेक जो है जो एज अ प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो उसके बारे में बताया है, जो हम लेक्चर के दौरान और डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको बताया। आप सबको बच्चों आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Okay, next we have Mezzabin ma'am. Mezzabin ma'am, are you there? Please. Hello. Yeah, we can see you. Yeah, we can hear you. Yeah. Hello, good afternoon, girls. Hello. हाँ बच्चों में मैं थोड़ा सा सोशोलॉजी कैमरा ऊपर ले लेना, थोड़ा सा। अच्छा ठीक हाँ, है। थोड़ा yes. ओके थोड़ा सा दूरी पे, थोड़ा दूरी पे। ठीक है। yes. गर्ल्स, मैं आपकी सोशोलॉजी टीचर हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ और हिंदी मीडियम में होम मैनेजमेंट भी पढ़ाती हूँ। अभी हमारे कॉलेज के बारे में तो हमारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, टीचर ने, सुपरवाइजर, वाइस प्रिंसिपल, सभी मेरे फ्रेंड्स ने बहुत जानकारी दी है। आप भली भांति परिचित हो गए कॉलेज के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। मैं थोड़ी बहुत आइडिया, जानकारी देना चाहती हूँ कि सोशोलॉजी में हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो हमें फॉलो करना होता है। तो आप बहुत एंजॉय करोगे। आप अगर सोशोलॉजी नहीं भी पढ़ते हो फिर भी आप समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, उसके रूल्स फॉलो करते हो। लेकिन उसमें और सोशोलॉजी पढ़ने के बाद जब आप सिटीजन होते हो तब क्या फर्क है वो सिर्फ आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट बनने के बाद ही जान पाओगे। ओके। और इसके साथ में होम मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। आपको सबको पता है कि हमारा एसएनडीटी कॉलेज है जहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि होम मैनेजमेंट में भी वो बहुत अच्छी तरह से
होम मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी तरह से उनको सिखाया जाता है कि सेविंग्स कैसे करना है, बेस्ट हाउस वाइफ्स कैसे बनते हैं। नो डाउट वर्किंग वुमेन भी हाउस वाइफ्स ही होते हैं। तो आपको सोशियोलॉजी, होम मैनेजमेंट और सभी सब्जेक्ट सीखकर बहुत अच्छा लगेगा। नॉलेज के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स भी मिले और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे कॉलेज में आकर बहुत एंजॉय करें, खुश रहे। ओके, थैंक यू। Okay, now I request Manisha madam to introduce herself. Can everyone see me? Am I audible? Yeah, you are audible, but we can't see you. Yeah, yes. Yes. Good morning, everyone. My name is Manisha Chaurasia, and I'll be teaching you Organization of Commerce. And I'm very happy and excited to teach you, everyone. Of course, things will be a little different. We are going to learn online, but don't worry. We'll make sure that even the online lectures would be interesting and wonderful, and you will love. You will always cherish the decision of coming to our college. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay, now I invite Ruti to introduce herself. Am I audible? Yes, Ruti, yeah. I welcome you all in our college. I'm Dhruti Chaurasia, ma'am. I will be making you learn two subjects, which is OCM and bookkeeping and accountancy. Thank you. Okay, now I invite Daisy. Daisy to introduce herself. Daisy, we can't hear you. हाँ, ओके मैम, सॉरी। दिखाई दे रही है आप लोगों को? Yes. हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। मेरा नाम डेजी शर्मा है। इकोनॉमिक्स हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी। अगर आप कोई भी चीज़ की, अगर आप लोग हिंदी मीडियम में नोट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग प्लीज़ डरिएगा नहीं। आपको जो भी चाहिए नोट्स, हिंदी की बुक चाहिए, वो मैं आपको सब गाइडेंस करूँगी कैसे हिंदी की बुक आप ले सकते हो और कैसे पढ़ना है। आप लोगों को मालूम है इको बहुत हार्ड लगता है बहुत लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ हार्ड होती है और हर चीज़ सिंपल होती है। अगर हम सोचेंगे तो सब कुछ आसान है। थैंक यू सो मच और वेलकम टू कॉलेज। Yeah, now I request Pooja madam to introduce herself. Pooja ma'am is the host. She is giving us technical support throughout the program. So I don't know whether she'll be able to communicate with us. Pooja ma'am, you are there? Pooja Rele ma'am? Yeah. Okay, Pooja Rele ma'am will teach IT to the students. Of course, whenever it is possible, she'll talk to you online. Fine. Now I request. Ma'am, am I audible? Yes. Yeah. Yes, you are audible. Yeah. Yeah. Can we see you? Will it be possible to see you, dear? No, ma'am, it won't be possible. No, Fine. students, this is Pooja Rele ma'am here, and I'm your IT lecturer. So I wish you good luck. And basically, the subject is very interesting, all of us know, because information technology is a need of the hour. I'm sure all of you are going to have a very good time and you'll enjoy this subject. Good luck. Yeah. Thank you, students. Yeah. Then next I invite Shinde sir. Shinde sir. हॅलो. Yeah. नमस्कार. मी सिद्धार्थ राजाराम शिंदे आपल्याला मराठी विषय शिकवणार आहे. प्रथमतः आपण आमच्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. एका कवीनं म्हटलेलं आहे, तू कुंकलेसर निसिंह अगाध ज्ञानाच्या बळावर
तू तोडल्यास गुलामांच्या पायातल्या बेड्या. तू फुंकलेस रणसिंह अगाध ज्ञानाच्या बळावर, तू तोडल्यास गुलामांच्या पायातल्या बेड्या. आपण आज शिक्षणाची गरज आहे. जोपर्यंत आपण शिक्षण घेणार नाही तोपर्यंत आपला विकास होणार नाही. आणि म्हणून या कवीच्या उक्तीप्रमाणे आपण ज्ञानाच्या बळावर आपण हवी ती गोष्ट प्राप्त करू शकतो. आपल्या जीवनामध्ये जर आपल्याला यशस्वी व्हायचं असेल, आपल्या आईवडिलांची स्वप्न जर आपल्याला साकार करायची असतील, आपली स्वप्ने पूर्ण करायची असतील, तर आपल्याला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही किंवा शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही. आणि म्हणून आपण 10वीत उत्तीर्ण होऊन आपण दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपण किंवा दुसऱ्या पायरीमध्ये प्रवेश केलेला आहात, तेव्हा पुढील शिक्षणासाठी आपल्या आयुष्यासाठी माझ्या वतीने आपल्याला पुढील आयुष्य व शैक्षणिक वर्ष सुखा समाधानाचे, आनंदाचे, यशाचे व प्रगतीचे जावो हीच माझ्या वतीने शुभेच्छा. व या ठिकाणी माझे 2 शब्द सांगतो. Okay, next we invite Shabana ma'am to introduce herself. Am I audible or visible? Yes, dear, you're audible. Yeah. Good afternoon, everyone. I'm Shabana Khan from Mathematics Department. Hello. 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 Yes, you are audible. Most of the students don't like math, but I'll make it interesting. Okay, best of luck for your brightest future. Thank you. Yeah. Now I invite Poonam ma'am to introduce herself. Hello. Yeah, we can hear you, Poonam. ओके मैम. बच्चों, बीएम रिया कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है. जैसा कि मंजू मैम ने आप लोगों को बताया कि हमारे हिंदी विभाग की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम हमारे कॉलेज में होते ही रहते हैं और बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही एक्साइट होकर के इस सारी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अपने अपनी कला का प्रदर्शन भी वहाँ पर दिखाते हैं. जो भी अंदर उनके गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, वो उभर कर सामने आते ही हैं. तो ठीक उसी तरह से और हमारे पाठ्य पुस्तक में भी कौन कौन सी चीजें हैं, क्या आप नया सीखोगे, वो भी मंजू मैम ने आप लोगों को बताया कि अभी तक आप स्कूल सेक्शन में संधि, कारक, उपसर्ग ये सारी चीजें सीखते आए थे और आगे भी सीखेंगे. ये अभी भी हमारे जो शब्द संपदा जो एक्टिविटी है वो शब्द संपदा में विभाग में अभी भी ये सारी चीजें रहेंगी ही. साथ ही आप जो पत्र लेखन करते थे, कहानी लेखन करते थे, विज्ञापन लिखते थे, निबंध लिखते थे, अब इन सारी चीजों की जगह पर आप थोड़े बड़े हो गए हैं, स्कूल सेक्शन से निकलकर कॉलेज में आ गए हैं, तो उसके अनुसार आपकी जो पढ़ने की जो कला है वो भी थोड़ा उभर कर ऊपर आ गई है और अब आप समाचार लेखन करना सीखोगे. रेडियो जॉकी की तरह आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि कैसे हमें भी जॉकी बनना है, रेडियो जॉकी करना है. और ये अध्ययन जो आप स्कूल सेक्शन में करते आए थे पहले भी कि कैसे आप लोगों को स्कूल में भी वीडियो दिखा करके कैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता था, तो कैसे होता है, कैसे उसके द्वारा हम नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इन सारी चीजों को जो आपके रोजगार के लिए भी फलदायी हो सकती है, रोजगार के रूप में भी उपयोगी हो सकती है, ऐसा हिंदी विभाग ने अब जो है बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे पाठ्य पुस्तक में जो परिवर्तन लाया है, ये आप लोगों को भविष्य में उपयोगी हो सके, इस बात को ध्यान में रख करके ही हमारे पाठ्य पुस्तक में इसे रखा गया है. और पाठ्य पुस्तक हमारे जो महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है वो सारी पुस्तकें ही हमारे कॉमर्स और आर्ट्स की सारी पुस्तकें जो है आपको वही पुस्तक यूज करनी है. उसके लिए कोई स्पेशल बुक खरीदनी नहीं है. जो बोर्ड द्वारा प्रकाशित है वही हमें लेना है. ठीक है. और कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो है बराबर समय पर अपना लेक्चर अटेंड करेंगे. ऑल द बेस्ट बच्चों. Thanks to all the respected teachers for introducing themselves.
Yeah. ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो भी टीचर्स ने आपको इंट्रोड्यूस किया उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बताया. इन द बिगिनिंग ऑल्सो वाइस प्रिंसिपल शमा मैम, शी ऑल्सो स्पोक टू यू. शी विल बी टीचिंग SP and accounts. Ajita ma'am will be teaching SP, OC and accounts. Anita Patil ma'am has introduced herself. She will be teaching you physical education, that is sports. Sapna ma'am also will teach you BK, SP, OC. And myself, Malini ma'am already introduced me as I was anchor of the program. I am the anchor of the program and I'll be teaching English to both 11th and 12th standard. Okay. So first of all, again, I would like to express my gratitude towards the honorable members of Marwadi Sammelan for their constant support and motivation. We also appreciate the presence of parents and students, especially parents. आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमें सुना. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. We would like to thank our pillar of strength, our support, and our, you can say, the strength of the college and the teachers, our own principal ma'am, Dr. Santosh Kaul. And special thanks to Shruti ma'am for that usual delight, that beautiful presentation, which has motivated all the students. They are so keen to join. And we can understand that, and no doubt you will enjoy these moments in the near future. We are awaiting. I also thank our Vice Principal ma'am, Shama Tamankar, and our Supervisor ma'am, Kusuma ma'am, for her words of wisdom and code of conduct. Yeah, very important announcement I would like to make here, especially that there is a confusion in the minds of students whether this board is university, SNDT University is affiliated to any other board. No, it is very much University of Mumbai, SNDT University of Mumbai. It comes under Mumbai region and no other board. So please take that into account. Yeah, and especially 11th and 12th standard, it's as we are part of Maharashtra board, it is HSC board. So I sum up this session. Best wishes to all my dear students. We will be seeing you from tomorrow online in the online session. God bless you all. See you soon. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. You may Bye, exit ma'am. now. Yeah.